Okay. In previous classes, we have discussed about cells, its normal structures, and basic principles that guides the cell's functions. Okay. So some of that were cell theories were cells are building blocks of all plants and animals. All new cells come from diffusion of pre-existing cells. Cells are the smallest unit that perform all vital physiological functions. So these theories we have discussed in previous class. Then comes cell differentiation for specialization. So how do cells divide and specialize in different types of cells? So cells किस प्रकार से डिवाइड होते हैं और अलग अलग प्रकार के सेल्स में फिर आगे जाके बनते हैं. So that is the thing that we have discussed in classes so far. Okay, so after that, the thing is cells are the smallest living units of life. So cells have plasma membrane. So we have discussed plasma membrane in detail. What are the plasma membrane functions? Physical isolation, regulation of exchange with external environment, sensitivity to environment, structural support, lipid bilayer provides isolation. Protein performs most other functions. So we have discussed this also. Phospholipid bilayer. So we have seen the how the plasma membrane layer is formed and what is the phosphate component and what is the lipid component. So we have seen that also. So phosphate component and lipid component. So ये आपका इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. Phosphate is red colored and the yellow colored part is lipid color or lipid form. So bilayers मतलब दो लेयर. बायलेयर का मतलब होता है बाय का मतलब होता है टू और दो. ओके. सो बायलेयर मतलब टू लेयर्स. सो एक लेयर ये है और एक लेयर ये है. ओके. देन वी सॉ द importance of proteins and types of proteins present in plasma membrane. So उसके बाद में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का क्या रोल रहता है और कौन कौन से प्रकार के या टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं. ओके. Permeability of membranes, membrane transport mechanism. Now this is important. We have discussed simple diffusion and facilitated diffusion, osmosis and tonicity. Active transport also we have discussed. Secondary active transport, vesicular transport we will be discussing today. So going into the membrane transport mechanism. So first of all, membrane transport mechanism. So ये जो तीन वर्ड्स मिलके एक डेफिनेशन बनती है मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. ओके. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेम्ब्रेन इन सेल्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है सेल्स की. फर्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को लेके जाना. सो इन सेल्स इट इज मोस्टली मॉलिक्यूल्स O2, CO2, water. These are the things that we transfer. So after that, membrane transport mechanism. So transport is एक जगह से किसी दूसरी जगह पर किसी चीज को लेके जाना is transport. After that, mechanism. Mechanism मतलब उस ट्रांसपोर्ट का क्या जरिया है. ट्रांसपोर्ट आप कैसे कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो तो रहे लेकिन ट्रांसपोर्ट होने के भी तो बहुत सारे जरिए होते हैं ना. वैसे ही इसमें भी होते हैं. मैकेनिज्म को मतलब है तरीका
किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, अगर हम इसको पूरे तीनों वर्ड्स को इकट्ठा करके देखें तो इसका मतलब सिंपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेम्ब्रेन के आर पार जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किन तरीकों से पॉसिबल हो पा रहा है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। ओके, सो पैसिव में हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, पैसिव में हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, बट इन एक्टिव प्रोसेसेस हमें एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। Okay, so in passive processes there is no need of ATP. In active processes there is need of ATP. Now आपने ये तो देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी पैसिव, इट कैन बी एक्टिव। लेकिन उन प्रोसेसेस को पूरा कौन करता है या फिर वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट थिंग इज डिफ्यूजन, second is carrier mediated transport, carrier mediated transport, third one is vesicular transport. So these are the three transport mechanisms जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज, कोई भी मॉलिक्यूल पास करने के लिए चाहिए होते हैं, वेदर इट इज O2, CO2, वाटर, सोडियम, पोटेशियम आयंस, कोई भी चीज जो सेल्स को नीड होती है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर भेजने होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। सो दीज आर द थ्री मैकेनिज्म्स जो हम आगे पढ़ते हैं। ओके, सो साइटोप्लाज्म पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर कोई चीज लेके जानी है, सो यही तीन प्रोसेस यूज होंगे। सिमिलरली ECF से साइटोप्लाज्म में कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, सो यही तीन मैकेनिज्म यूज हो सकते हैं। नाउ इधर डिफरेंस क्या आते हैं? डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस सिंपल है, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, तीनों अलग अलग पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तीनों अलग अलग पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन इन प्रीवियस क्लासेस व्हेन वी डिस्कस। सो डिफ्यूजन का मतलब सिंपल होता है किसी चीज का प्रसार होना एक जगह से दूसरी जगह। सिंपल डिफ्यूजन, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज का प्रसार होना। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ कुछ पार्टिकल्स को, कुछ चुने हुए पार्टिकल्स को सिंपल डिफ्यूजन करने के लिए अलाउ करते हैं। उनमें से जो होते हैं वो होते हैं O2 एंड CO2। दीज आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। सो CO2 एंड O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो लाइफ सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। सिमिलरली अगर सेल के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, अगर वो सेल से बाहर नहीं जाएगा तो भी सेल डेथ होगी या फिर सेल के जो फंक्शंस हैं वो ऑप्टिमली नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो जो मेन चीज इसमें देखने को मिलती है, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन में ऐसे प्रोडक्ट्स को अलाउ करा गया है जो लाइफ सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन पे कोई रोक टोक ना हो, ये अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अंदर बाहर मूव हो सकते हैं, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इनको सिंपल डिफ्यूजन में रखा गया। सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है, जो चीज अगर मान लो CO2 है या फिर O2 है, O2 का एग्जाम्पल ठीक रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में O2 की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर का पार्ट है उसमें कम है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा जिस तरफ ज़्यादा है वो उससे
कम जगह वाली चीज पे, कम जगह वाली जगह पे जाने लग जाता है। सो यहाँ पर O2 जो थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा थे, वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में आना शुरू करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, एंड वो तब तक आते रहते हैं जब दोनों जगह पर O2 बराबर ना हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं O2 के लेवल्स बराबर हो गए तो सिंपल डिफ्यूजन रुक गया। ओके, सिमिलरली CO2 सेल के अंदर ज़्यादा होता है तो उसको बाहर जाना होता है, और बाहर CO2 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो भी सिमिलरली ऐसे ही ट्रांसफर होगा। सो सिंपल डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई रोक टोक नहीं करती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है पार्टिकल्स को, और पार्टिकल्स अपने कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मूव करते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर है कौन से पार्ट में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या फिर उसकी मात्रा ज़्यादा है, और कौन से पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जिस पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन या मात्रा कम है उस पार्ट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल डिफ्यूजन। नाउ कम्स फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन इज, डिफ्यूजन का मतलब हिंदी में होता है प्रसार, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, फैसिलिटेड, अगर उसी प्रोसेस को कोई हेल्प करता है तो फैसिलिटेट करता है, कोई कोई भी चीज अगर उस प्रोसेस को हेल्प करती है। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर कोई चीज हेल्प करती है तो उसे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या अंतर होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन में आपको मेम्ब्रेन खुद अलाउ करती है कि आप आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पार्टिकल्स होते हैं, सिलेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होती, वो अपने कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मूव कर सकते हैं। बट इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली अलाउ नहीं करती। सो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, या ये जिनसे सोडियम पोटेशियम आयंस या वाटर लेवल जो भी होते हैं, वो हेल्प लेते हैं चैनल प्रोटीन की, वो हेल्प लेते हैं चैनल प्रोटीन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। सो चैनल प्रोटीन कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि यस यू कैन गो थ्रू चैनल्स। सो चैनल्स का मतलब होता है रास्ता। सो चैनल प्रोटीन, प्रोटीन जो आपके बाकी मॉलिक्यूल्स को रास्ता बनाकर दे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रास्ता बनाने वाला हो गया चैनल प्रोटीन, उसने हेल्प करी एक मॉलिक्यूल को दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए, सिमिलरली साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड तक जाने के लिए। ओके, so facilitated diffusion of substances crossing the cell membrane takes place with help of proteins such as channel proteins and carrier proteins. तो चैनल प्रोटीन्स किसी में भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज है, चैनल प्रोटीन भेदभाव नहीं करते कि कौन सा मॉलिक्यूल उसके थ्रू पास हो रहा है। ओके, सो वो सबको अलाउ करते हैं, वेदर इट इज सोडियम पोटेशियम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सबको अलाउ करते हैं। बट सिमिलर आपके होते हैं कैरियर प्रोटीन्स, वो भेदभाव करते हैं, वो किसी किसी को जाने देते हैं और किसी किसी को नहीं जाने देते। ठीक है, सो कैरियर प्रोटीन्स क्या हो गए, सेलेक्टिव। कैरियर प्रोटीन्स क्या हो गए, सेलेक्टिव, और चैनल प्रोटीन्स नॉन सेलेक्टिव। कैरियर प्रोटीन्स आर मोर सेलेक्टिव, often only allowing one particular type of molecule to cross. So एक ही मॉलिक्यूल के टाइप को वो क्रॉस करने देते हैं अपने थ्रू। सो कैरियर प्रोटीन्स आर मोर सेलेक्टिव। ठीक है, नाउ कम्स ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई concentration to low concentration.
ओके, सो जब भी हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन का, तो सिमिलरली वाटर के केस में भी होता है। जहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में जाना या डिफ्यूजन होना, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सो ऑस्मोसिस इज सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर or diffusion of water H2O. Then tonicity, tonicity. So hypertonic, hypertonic, isotonic, and hypotonic. Hypertonic, isotonic, and hypotonic. So we have talked about hypertonic, isotonic, and hypertonic in previous classes also. So hyper का मतलब होता है बढ़ना, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, आइसो का मतलब होता है सेम रहना, हाइपर का मतलब होता है हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, आइसो का मतलब होता है सिमिलर या सेम रहना, हाइपो का मतलब होता है कम होना। ओके, सो हाइपर, आइसो एंड हाइपोटोनिक। So, so whenever we talk about these three terms, hypertonic, isotonic and hypotonic, so सेल्स का जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, वेदर कोई भी सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो, जब भी हम उन सेल्स की बात करते हैं, सो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक वाटर कंटेंट लेवल होता है, उनका एक यू कैन से कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, शेप, साइज में, स्ट्रक्चर में बेसिकली। सो जब भी हम कोई सॉल्यूशन जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देर आर टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मतलब होता है जो चीज हम सॉल्यूशन में मिलाते हैं, सॉल्यूशन एक लास्ट टर्म हो जाता है, उसमें आपके सारी चीजें आ जाती हैं। सो यहाँ पर हम जब भी देखेंगे H2O is our solution, H2O is our solution and red blood cells are our solute। तो इसमें होता क्या है, आपके सेल्स में अगर हम नॉर्मल सेल्स में देखें तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, नॉर्मल राउंड शेप। ओके, बट हाइपरटोनिक केसेस में जो वाटर कंटेंट था सेल का, वो बाहर की तरफ मूव आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, अपनी इंटीग्रिटी को लूज करने लगते हैं। ओके, सो यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का जो है घट रहा है। सिमिलरली इन आइसोटोनिक रिमेन्स द सेम, H2 out outer in out of the cells and in the cells remains the same, H2O levels in the cells and out of the cells remains the same. In hypotonic conditions, H2O levels outside the cell is decreased than in the cells. So cells के अंदर जो water content है वो ज़्यादा हो गया है, और cells के बाहर जो water content है वो कम हो गया है। Similarly in hypertonic conditions, cells के अंदर जो water levels हैं वो कम हो गया है, और जो cells के बाहर है वो water content ज़्यादा हो गया है। So tonicity is something that you should know. Now comes एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने अभी पीछे देखा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी की नीड हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी की नीड हो। ओके, जो विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ओके, जो विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो इसका एक कॉमन एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। ना सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सोडियम पोटेशियम पंप
सो सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब भी हम बात करते हैं तो सोडियम पोटेशियम उसके थ्रू पास होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के। ओके, लेकिन पूरी सेल मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करती अंदर या बाहर जाने से, ट्रांसपोर्ट होने से। सो सोडियम पोटेशियम पम्प्स आर देयर इन सेल मेम्ब्रेन, और उधर से ही उनका ट्रांसपोर्ट हो पाता है और कहीं से नहीं हो पाता, सोडियम पोटेशियम पंप। सो हम उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि वहीं से सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस, ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। तो सोडियम होता है वो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है इन नॉर्मल कंडीशंस। ओके, इन नॉर्मल कंडीशंस जो सोडियम है वो सेल्स के बाहर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। ओके, और जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर कम मात्रा में होते हैं। पोटेशियम जो है, पोटेशियम सेल में कम मात्रा में होते हैं, सोडियम सेल्स के बाहर ज़्यादा मात्रा में होते हैं और पोटेशियम कम मात्रा में होते हैं। लेकिन सेल के अंदर ये ऑपोजिट हो जाता है, सोडियम जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं एंड पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ किसी भी कारणवश अगर सोडियम जो है सेल के अंदर ज़्यादा होने लगता है, सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा होने लगता है, तो हमें उसे होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सेल के बाहर पहुंचाना होता है। अब सेल सोडियम को बाहर पहुंचाने के लिए हमें एक्सरसाइज एनर्जी की नीड होती है, एटीपी। एटीपी हमें नीड होती है ताकि वो सेल्स के बाहर जा सके, सोडियम जो है वो सेल के बाहर जा सके। सो सोडियम पोटेशियम पंप इज पावर्ड बाय एटीपी to transfer sodium out of the cytoplasm and into the ECF. The pump also transferred potassium out of the ECF and into the cytoplasm. So हमारा जो सेल का होम्योस्टेसिस है, सेल का भी एक होम्योस्टेसिस होता है, वो मेंटेन करने के लिए, तो सेल का होम्योस्टेसिस क्या था? सेल का होम्योस्टेसिस ये था, सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा होगा और पोटेशियम जो है वो साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये चेंज हो जाता है, सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा होने लग रहा है और पोटेशियम जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा होने लगता है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमें सोडियम को बाहर भेजना पड़ता है, सोडियम को सेल के बाहर भेजना पड़ता है, साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भेजना पड़ता है। और जब हमें ये करना होता है तो हमें एक्सरसाइज एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी प्रोवाइड कराता है कौन? एटीपी। ओके, सो एटीपी हमारा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, सोडियम को सेल्स के साइटोप्लाज्म से बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ले जाने में हेल्प करेगा, और सिमिलरली पोटेशियम को सेल्स के अंदर लाने में। ओके, सो दैट वाज अ सोडियम पोटेशियम पंप एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ कम्स secondary active transport. Secondary active transport. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लीज इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सो जब भी हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सो ओके, टू प्रिजर्व hemostasis, a sodium ion and a glucose molecules bind to receptor sites on the carrier protein. The carrier protein then changes shape, opening a path to the cytoplasm and releasing the transported materials. It then resumes its original space and ready to repeat the process. To preserve homeostasis, the cell must then expand ATP to pump the arriving sodium ions out of the cells by using the sodium potassium exchange pump.
It thus costs the cells 1 ATP for every 3 glucose molecules it transport into the cell. ओके, सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर एक चीज आपको जो ध्यान देने वाली है, हमने जब सोडियम एंड पोटेशियम की बात करी थी तो इसमें सिंपल सा प्रोसीजर था, सोडियम अंदर से बाहर जाता था एंड पोटेशियम वापस अंदर आता था। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर सोडियम आयंस जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हेल्प कर रहे हैं। ओके, सोडियम आयन जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की हेल्प कर रहे हैं सेल के अंदर आने में। ओके, अगर सोडियम आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं आ सकते। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे सेल के लिए नीड ही है, और सेल्स की फंक्शन के लिए नीड होती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज चाहिए सेल्स को, लेकिन वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन बहुत सेलेक्टिव होते हैं। सो कैरियर प्रोटीन बोलता है कि ग्लूकोज को कि अगर आप सोडियम को साथ में लाओगे तभी मैं आपका एंट्री दूंगा, वरना नहीं दूंगा। कैरियर प्रोटीन बोलता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कि अगर आप सोडियम को साथ में लाओगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ओके, सो अगर ऐसा होता है तो क्या चीज होती है, ग्लूकोज सोडियम के साथ में अंदर आता है, ग्लूकोज अंदर आया, सोडियम भी साथ में अंदर आ गई। लेकिन अब सोडियम अंदर आया तो जो मेन प्रॉब्लम हुई वो ये थी, होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये आई कि सोडियम बाहर ज़्यादा होना चाहिए, सेल के अंदर कम होना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज साथ में उसको लेके आया है तो सोडियम को वापस बाहर भेजना पड़ेगा। ओके, सो ग्लूकोज की हेल्प करने के बाद में सोडियम का काम खत्म हो जाता है सेल के अंदर। फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जाता है और उसमें एक एटीपी यूज होता है, एक एटीपी यूज होता है। तो मतलब, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ ओके, सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ जब भी हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल की हेल्प ले रहे हैं जिसमें, सेकेंडरी का मतलब किसी ऐसे मॉलिक्यूल की हेल्प करना जो सेल के अंदर वैसे नहीं जा सकता क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। ग्लूकोज का साइज बहुत बड़ा होता है बाकी आयंस के कंपैरिजन में, सोडियम एंड पोटेशियम इनके कंपैरिजन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। तो जब भी हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज को हेल्प चाहिए सोडियम की ट्रांसफर होने के लिए। ओके, सो ट्रांसफर सेल के अंदर जाने के लिए सोडियम की जरूरत है। नाउ सोडियम की जरूरत ग्लूकोज को है, लेकिन सेल के अंदर सोडियम की नीड नहीं है। सो ज़्यादा सेल्स नहीं होने चाहिए सोडियम के, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। तो उसी से फिर सोडियम को बाहर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए तो मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। ओके, और सोडियम को खुद के लिए नहीं करना पड़ता, वो ग्लूकोज के लिए करना पड़ता है, इसीलिए वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हुआ। अगर सोडियम खुद से जाना चाहता होता और खुद अंदर जाता
तो वो होता एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट सोडियम को ग्लूकोज के लिए अंदर जाना पड़ रहा है, ओके, और उसके लिए एनर्जी यूज करनी पड़ रही है बाहर आने के लिए वापस, इसीलिए ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसीलिए इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सोडियम का रोल इतना ही था कि उसे ग्लूकोज को अंदर पहुंचाना था, उसे खुद से अंदर नहीं जाना था, उसे सिर्फ ग्लूकोज की हेल्प करनी थी। ओके, सो ग्लूकोज की हेल्प के लिए सोडियम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ कम्स वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, so whenever we talk about endocytosis or active transport, please remember two things. So वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें आपको वेरियस प्रोसेसेस दिखा रखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रखी है। सो जब भी हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की, तो लास्ट वन इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ओके, सो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेना और उसका एक वैक्यूल बनाना, या ओके, सो एनगल्फ करना किसी भी पार्टिकल को या फिर किसी भी पैथोजन को, किसी भी चीज को एनगल्फ करना। एनगल्फ मतलब करना, अगर हम हिंदी में बोले तो अपने अंदर समा लेना और उसको फिर बाहर की तरफ निकाल देना। ओके, सो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, exocytosis. These are two transport mechanism. One is endocytosis and other one is exocytosis. So three forms of endocytosis. First one is phagocytosis. Second one is pinocytosis or pinocytosis. Third one is receptor mediated endocytosis. So we will be discussing this in further classes, vesicular transport, as well as other structures of the cells in detail. Okay. So the